Hello student, today we learn about sexual reproduction in flowering plants. So we see here the second chapter of the according to NCERT book of the 12th class, that is the sexual reproduction in flowering plants. The flowering plants are called angiospermic plants. Angiospermic plants are those plants which have the flower bearing plant. Study of flower, a special branch of the science botany that is called anthology. Flower science. Anthology is the flower science. You already know that the smallest flower, Wolfia, and the largest flower, Rafflesia. The Wolfia and the Rafflesia, all the flower have, that is the reproductive organ of the plant. Flower is the reproductive organ of the plant. We study here sexual reproduction in flowering plant. And you already know reproductions are two types. We have already seen that is the earlier video. That is the vegetative sexual reproduction and sexual reproduction. So we study here sexual reproduction in flowering plant or angiospermic plant or flower bearing plant. First of all, we know what is the flower. Flower is the modified shoot. At the time of reproduction, flower change into shoot change into flower. The modification of the shoot, otherwise you can say flower is the condensed stem that are helpful in reproduction. All the plants have a different time that these time they develop flower and by which they produce that is the same type of animal by sexual method. We see here that in case of any organism there are two stages. First is the gametophytic stage, other is the sporophytic stage. These stages are running, that is every life cycle of any organism. Especially you see here in case of plant, different type of plant have different type of life cycle. Some plants have gametophytic stage, that is a longer time. Sporophytic, that is a shorter time. Suppose bryophytes. Bryophytes are the plants which have a gametophytic stage longer time than the sporophytic stage. But in case of angiospermic plant, flowering plant, sporophytic stage is longer time. We see here there are two stages. The basic, that is you already know, sporophytic phase and gametophytic phase. It is the stage or phase of the life of the flowering plant. First, what happens in the reproduction? We see here all their life, that is a process by a flow chart. Then you understand easily how the process of the reproduction in flowering plant. First, we see here, you already know, the first cell by which any organism stores their life. That is zygote. So here the formation of zygote. That is that this zygote is 2n. 2n means that is the chromosome number diploid and haploid. The one chromosome, that is one set of chromosome, diploid. The diploid chromosome here zygote. Zygote is the first, that is a cell which stores the life cycle of the angiospermic plant. By which that is zygote. zygote ही ऐसी सेल है जिससे पहले स्टार्ट करता अपनी लाइफ प्लांट. अब देखिए आप जाइगोट से बनता क्या है, सीड बनते हैं. अब सीड देखेंगे आप, प्रोसेस बताऊंगा बनना, पहले आप एक चीज देख लें फ्लो चार्ट कैसे क्या क्या हम पढ़ेंगे. तो उसी स्टेप में हम चलेंगे कैसे सीड बनता, सीड फॉर्मेशन आपको दिखाएंगे. जाइगोट होगा 2n जो दिखाते हैं, डिप्लॉयड होगा, यहाँ से सीड बनेगा. अब ये सीड जाइगोट एम्ब्रियोनिक डेवलप, जाइगोट से सीड हो जाएगा. सीड जो होगा वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जाएगा, स्पोरोफाइट में प्लांट बनाएगा. ये प्लांट, स्पोरोफाइट क्या प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट. अब देखिए ये प्लांट बनाएगा, ये स्पोरोफाइट बनेगा. स्पोरोफाइट जो है आपका जब ये बन जाएगा 2n होगा. अब स्पोरोफाइट से देखिए प्लांट आपको दिखाया हम, यहाँ प्लांट बन गया है. प्लांट मैच्योर होगा, मैच्योरिटी ऑफ प्लांट, मैच्योर होगा प्लांट. व्हेन मैच्योरिटी देन दे डेवलप फ्लावर. देखो यहाँ आ गया फ्लावर, वो फ्लावर डेवलप करेगा. और फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड शूट को मॉडिफिकेशन हो जाएगा और फ्लावर डेवलप हो जाएंगे. अभी आपको फ्लावर भी पढ़ाएंगे कि किस तरह के फ्लावर के कौन सा फॉल पार्ट हैं. अब फ्लावर में दो रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप होते हैं. एक होता है एंड्यूसियम, दूसरा गाइनोसियम. एंड्यूसियम में एंथर होता है और गाइनोसियम में जो कि कार्पेल होते हैं. अभी आपको वही देखेंगे, दिखाएंगे आपको कौन कौन पार्ट हैं उसके. तो एंथर देखिए और कार्पेल के अंदर होते हैं स्टिग्मा स्टाइल ओवरी. ओवरी में ओव्यूल होते हैं. अब देखिए यहाँ एंथर और ओव्यूल, यहाँ तक देखिए अभी एंथर जो आपका 2n है
ओव्यूल भी यहाँ आपका 2n है, यहाँ तक आप देखिए। अब इसी के बाद देखेंगे आप, इसमें मियोसिस हो जाएगी, एंथर सेल में मियोसिस होगी तो बनेगा क्या, माइक्रोस्पोर। एंथर को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो आता है स्पोरो, क्या नाम उसका, माइक्रो स्पोरोफाइट कहते हैं उसको। तो देखिए आप एंथर को, एंथर में होगी मियोसिस, ओव्यूल में अंदर मियोसिस होगी, तो इससे बनेगी माइक्रोस्पोर, यह मेल गैमिट। माइक्रोस्पोर इसकी उपार्जन ग्रेन या इसी का तीसरा भी नाम मेल गैमिट भी इसको कहते हैं। और यहाँ ओव्यूल के अंदर बनेगा मेगास्पोर, इसको फीमेल गैमिट कहते हैं। अब दोनों गैमिट जब बन जाएंगे, फ्लावर मैच्योर होगा तो पॉलिनेशन हो गई, पॉलिनेशन के बाद दोनों बनाएंगे गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। या दोनों गैमेटोफाइट क्या करेंगे, दोनों के अंदर गैमेट होंगे, मेल गैमेट पॉलिन ग्रेन होगा, स्पर्म भी कहते हैं पॉलिन ग्रेन को, और फीमेल गैमेट ओवम होगा, दोनों ही मिलेंगे। अब देखिए आप यहाँ से मियोसिस हो गई है, अब मियोसिस ओनली सेक्स सेल में ही होता है, तो मियोसिस होने से दोनों स्पोर बन गए हैं, अब यंग हो गया, तो कंडीशन हमने क्या दिखा दिया, यंग दिखा दिया। अब यहाँ से देखिए क्या है, गैमेटोफिटिक स्टेज, यहीं से आप देख रहे हो हमने लाइनिंग खींची है, एक गैमेटोफिटिक स्टेज स्टार्ट हो जाती है। दी आर गैमेटोफिटिक स्टेज स्टार्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अब देखिए यहाँ क्या है, दोनों मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, देखिए यहाँ मैंने हमने दिखाया है, इनसे मेल गैमेटोफाइट में पॉलिन ग्रेन और फीमेल में बनेगा ओवम, दोनों फ्यूज करेंगे। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब दोनों का हो गया, हमने लिखा फर्टिलाइजेशन, यहाँ फर्टिलाइजेशन बाद यहाँ तक तो आपको गैमेटोफिटिक स्टेज, यंग स्टेज, ये सब पूरी यंग है यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से देखेंगे आप तो पूरी स्टेज आपकी 2 यंग है, 2 यंग स्पोरोफिटिक स्टेज होती है और यंग गैमेटोफिटिक स्टेज होती है। अब दोनों का मिलना, पहले पॉलिनेशन होगा, इसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, अभी दोनों प्रोसेस पढ़ते हैं। तो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा तो फिर बन जाएगा जाइगोट। अब ये यंग मिले, ये भी यंग था, ये भी यंग, अब यहाँ फर्टिलाइजेशन के बाद देखो 2 यंग बन गए, ये जाइगोट बन गई फर्स्ट से, फिर यहीं से स्पोरोफिटिक स्टेज स्टार्ट हो जाती है। ये इनकी लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। इट इज ए फ्लो चार्ट दैट आर provide you help to how the process occur in the sexual reproduction in flowering plant. So we see here a flow with the help of flow chart, every process, all the process we study step by step. हम सभी प्रोसेस का डिटेल स्टडी करेंगे फ्लावरिंग प्लांट में, कैसे प्रोसेस चलता है। तो देखें यह पहले फ्लावर को जानेंगे, तो फ्लावर के बाद फिर कोई फ्लावर चाहिए, यही हम आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल दिखाएंगे आपको। तो फिर देखते रहे आप, और फिर हम दिखा रहे हैं आपको कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो 2 स्टेज आपको हमने बताया, स्पोरोफिटिक स्टेज और गैमेटोफिटिक स्टेज। तो बार बार नाम बोलेंगे, स्पोरोफिटिक स्टेज, गैमेटोफिटिक स्टेज। स्पोरोफिटिक मीन्स 2 यंग, गैमेटोफिटिक मीन्स यंग। जहाँ मियोसिस होती है, आपको भी जान लें मियोसिस जो है केवल सेक्स ऑर्गन और सेक्स सेल में ही होती है, जिससे फलस्वरूप बनते क्या हैं, गैमेट बनते हैं। गैमेट वाज मेड विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। सो दीज आर द प्रोसेस by which the एंजियोस्पर्मिक प्लांट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट की लाइफ साइकिल है, कैसे कंप्लीट करता है। अब इसी को हम डिटेल में देखेंगे किस तरह से एक एक स्टेप चलते हैं। अब यह देखें, माइक्रोस्पोर का बनना है, मेगास्पोर का बनना, माइक्रोस्पोरोजेंसिस, मेगास्पोरोजेंसिस, फ्लावर के पार्ट किसमें कैसे चलते हैं, अभी देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप जुड़े रहें, ये देखा जाए। अब आगे देखिए आप कि फ्लावर को पहले देखें हम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंडीशन है फ्यूजन ऑफ गैमेट होते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं तो कंडीशन हमने आपको बताई है अगले वीडियो में कि इसमें होते क्या है कि गैमेट फ्यूज करते हैं और सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो फ्लावर देखें, शुरू करते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट देखा जाए। अब देखें हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या इसका है, फ्लावर। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का है फ्लावर। प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर देखेंगे। तो फ्लावर की स्टडी स्पेशल ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंथोलॉजी, फ्लावर साइंस, एंथोलॉजी। आप जानते हो कि नेचर का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है, आपको सबको पता है पहले से ही, रैफलेशिया। अगर स्पीशीज जानी तो आर्नोल्डी, रैफलेशिया आर्नोल्डी। स्मॉलेस्ट फ्लावर आप जान लीजिए, स्मॉलेस्ट फ्लावर, इसका नाम ओल्फिया
ओल्फिया, यह सबसे छोटा फूल है नेचर का। इतने फ्लावर आप पाओगे इसी के बीच में मिलेंगे। तो हर फ्लावर को देखेंगे, फ्लावर कोई हो, रेफलेसिया हो चाहे ओल्फिया हो, एनी फ्लावर कंटेन्स 4 पार्ट। किसी फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पहला पार्ट देखिए, पहला पार्ट कैलिक्स, पहला पार्ट इसका क्या है, कैलिक्स। इसके एक पार्ट को, कैलिक्स है क्या, इसका एक पार्ट सेपल कहलाता है, सेपल। आपने 11th में भी पढ़ा है, फिर आपको एक बार दिखा दें। दूसरा पार्ट इसका है करोला, इसको हम, इसके एक पार्ट को पेटल भी कहते हैं, पेटल। ये दोनों को एक साथ एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये देखिए एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हेल्प करेंगे, क्या हेल्प करेंगे हम आपको बताते हैं आपको। फिर तीसरा देखिए पार्ट इसका मेन पार्ट है, उसका नाम है एंडोसियम। एंडोसियम का एक पार्ट जो कहलाता है स्टेमेन, यह है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सेकेंड देखिए इसमें दूसरा गायनोसियम, कंफ्यूजन ना रहे कोई बात नहीं। गायनोसियम के एक पार्ट को कहते हैं कार्पेल, या इसी का दूसरा भी नाम है पिस्टिल। यह क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब देखिए, हम देखेंगे इन चारों को देखेंगे। ये देखिए आपने कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गायनोसियम, ये फ्लावर के पार्ट हैं। ये सभी पार्ट फ्लावर के थैलमस पर, थैलमस इज द प्लेस दैट आर प्रेजेंट इन फ्लावर वेयर एवरी पार्ट आर अटैच ऑन देम। तो यह पार्ट ऐसे अटैच होते हैं, यह हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। इन्हीं को पूरा आप फ्लावर बोलते हैं, जिनमें सभी पार्ट होते हैं उनको कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं, और जिसमें कोई एब्सेंट है तो इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं। अगर ये दोनों पार्ट हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेम प्लांट पर हो, सेम फ्लावर में हो, अगर बाई चांस देखिए ये दोनों पार्ट हैं, मेल एंड फीमेल एक ही फ्लावर में हो सकते हैं, ऐसे फ्लावर को आप बाइसेक्सुअल बोलोगे। क्या बोलोगे, इसमें बोथ पार्ट आर अवेलेबल, उसको कहोगे आप बाइसेक्सुअल, और जिसमें एक ही पार्ट होगा वह यूनिसेक्सुअल होगा। अगर एक ही पार्ट में क्या है, केवल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसमें है, तो आप कहोगे उसको स्टेमिनेट, और फीमेल है तो पिस्टिलेट। आपका सब टर्म जानते हो। अगर पूरे नहीं हैं तो इनकम्प्लीट है, पूरे हैं तो कंप्लीट है। अगर केवल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यह है तो स्टेमिनेट, अगर यह है फीमेल है तो पिस्टिलेट। इस प्रकार से हम देखेंगे कि यह फ्लावर पार्ट हैं, इस प्रकार से फ्लावर है, कंप्लीट इनकम्प्लीट फ्लावर। देखते हैं कैसे अरेंज हैं। अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाते हैं, आपको इससे क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर होगा आपको देखें, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं फ्लोरल पार्ट की। देखिए ध्यान से कि कैसे अरेंज होते हैं थैलमस पर। हम आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। देखिए एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। देखिए रिप्रेजेंटेशन दिखाए हैं आपको किस प्रकार से, एक शॉर्टकट हम रिप्रेजेंटेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। देखिए यहाँ जिससे आप क्लियरेंस आ जाएगा। इसके अंदर देखेंगे आप एक स्ट्रक्चर ऐसे ही आपको दिखाई देगी। अब आप देखिए इसके अंदर
नहीं देखिए ये कौन कौन से पार्ट इसके फ्लोर पार्ट यहाँ आएंगे देखा जाए तो आप देखिए फ्लोर पार्ट में कौन कौन से फ्लोर पार्ट कैसे आएंगे देखा जाए। इसको कहते हैं पेडिशिल। पेडिशिल ये पेडिशिल है इसका। ये है थाइलेमस। बार बार ये नाम बोले जाएंगे थाइलेमस। इसमें देखेंगे सबसे बाहर जो है यही है आपका सेपल। सेपल यह है आपका पेटल। ये आर्गुमेंट ऑर्गन है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, फ्लावर नहीं। एनी फ्लावर में भी होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लावर। आप इसके यू कैन सी हियर पेडिशिल, थाइलेमस, सेपल, पेटल, दिस इज एंथर। एंथर विदिन दी एंथर देयर इज पॉलन ग्रेन, जो आपको लिखा था वहां पॉलन ग्रेन। दैट इज कॉल्ड मेल गैमीटियन। मेल गैमीट, मेल गैमीट। ध्यान आप देखिए इसको, आप यहाँ देख लिए, आपने यहाँ देखा एंथर, इसको कहते हैं फिलामेंट। यहाँ इसका पार्ट देखिए, यहाँ दिखाया आपको फिलामेंट। फिलामेंट यहाँ देखिए, यहाँ जुड़ता होगा कनेक्टिव। कनेक्टिव आप देखिए इसको, आप देखेंगे इसका ये पूरा पार्ट इसको कहते हैं स्टिग्मा। इसके जो रोल है पॉलिनेशन में वहाँ दिखाएंगे आपको। ये इसकी स्टाइल देखिए, स्वेलन पार्ट देख रहे हैं आप। ये स्वेलन पार्ट इसका जो है यह है ओवरी। इतना पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये सब यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं, ये सब यहाँ से तो पूरे को एक साथ ओव्यूल। ये देखिए पेडिशिल, ओव्यूल, थाइलेमस। फिर इसके अंदर देखेंगे यहाँ देखिए इतना बड़े आप देखिए। इसी तरह डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोरल पार्ट। यहाँ पॉलन ग्रेन पूरा यहाँ से यहाँ तक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंथर इसके अंदर पॉलन ग्रेन। यहाँ देखेंगे पूरा यहाँ से यहाँ तक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और उसके बाद जस्ट इसके बाद स्टेमन के बाद होता है पेटल। ऑर्नामेंट ऑर्गन सेम इन एनी फ्लावर। इसके बाद पेटल देन सेपल। ग्रुप ऑफ पेटल कैलिक्स, ग्रुप ऑफ पेटल करोला, ग्रुप ऑफ सेपल कैलिक्स। अब जो आपको लिखा था सेम रिप्रेजेंटेशन फ्लावर के हैं। अब इसको आप देखिए ओव्यूल देखिए। ओव्यूल को कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। देखो इसका दूसरा नाम ओव्यूल का मेगास्पोरेंजियम। देखिए इसका एंथर है, ठीक है। पूरा यहाँ से यहाँ तक कहेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। इसका दूसरा नाम भी दे सकते हैं यहाँ से यहाँ तक माइक्रोस्पोरोफिल। इसका नाम माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके अंदर ये माइक्रोस्पोर। एंथर का दूसरा नाम दे सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके अंदर देखिए क्या है, यह पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को कहते हैं माइक्रोस्पोर। इसका दूसरा नाम भी देते हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर। अब देखिए इसके अंदर आइए ओव्यूल को दिखाएं। ओव्यूल देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट इन डिफरेंट फैमिली ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। That are also trappers, anatrappers, hemitrappers, compilotrappers, mp-trappers, succinotrappers. Name of the ovule. तो आप बहुत डिटेल नहीं आप इतना जानिए। ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। ओव्यूल्स इज कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम। These are the megasporangium. I think one carpel. You see here one carpel. Stigma, style, ovary. One carpel. One carpel or pistil contains stigma, style, ovary. इसके अंदर देखिए इसको कहते हैं बिल्कुल मेगास्पोरेंजियम। यहाँ देखेंगे आप, यह एम्ब्रियोसाइट। यह कहा था फीमेल गैमेटोफाइट। देखिए एम्ब्रियोसाइट, एम्ब्रियोसाइट। इसी का दूसरा नाम है फीमेल गैमेटोफाइट। इसके अंदर देखेंगे यह 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड है। 1 2 3 एक सेल 4 और 5 6 7 न्यूक्लियस 1 2 3 5 6 7 8 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। देखिए कितना एम्ब्रियोसाइट है। एम्ब्रियोसाइट को कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। इसके अंदर जो गैमीट है देखिए यहाँ, यही देखिए आप यही जो देख रहे हो, यही एक सेल है। इसका दूसरा नाम है एग सेल। एग सेल। अब यहाँ तक देखिए आपने ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। देखिए इसके अंदर पॉलन ग्रेन का बनना, एंथर के अंदर विदिन द एंथर फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर बनेगा, ये बनाएंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
इसके अंदर ये इसका बनना एम्ब्रियोसाइट का बनना, इसके अंदर कहाँ ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल आप लोग दिखाते हैं ना तो आपको ओव्यूल फिर पूछते हैं यहाँ तो आपको ओव्यूल, इसके लिए बनना एम्ब्रियोसाइट कहलाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। दो क्लासेस पढ़ना हमको, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। आप देखो यहाँ यह माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसमें होगी एंथर में, अब बनेगा क्या माइक्रोस्पोर पॉलिग्रेन, और मेगास्पोरोजेनेसिस यहाँ होगी ओव्यूल में, इससे बनेगा क्या ओव्यूल के अंदर यह एम्ब्रियोसाइट और एक सेल, इसको कहेंगे फीमेल गैमीट। एक सेल क्या है, एक सेल या ओवम, दोनों आप बोल सकते हो, या क्या फीमेल गैमीट, इसको कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो दोनों हम देखेंगे आंसर स्टेप बाय स्टेप लगे रहते हैं, फिर में देखते हैं। एक बात आप सुनिए, हम ओव्यूल दिखाते हैं आपको, ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर, कहीं कंफ्यूजन हो तो आप हम बोलेंगे दीज आर द एवरीथिंग आर द क्लियरेंस इन योर माइंड। एक बार फिर आप देख लो, इसका नाम है मेगास्पोरेंजियम, इसका नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम, ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, ये है मेगास्पोरेंजियम। इसके अंदर क्या है माइक्रोस्पोर बनेगा, इसके अंदर मेगास्पोर बनेगा, दोनों के अलग अलग प्रोसेस हैं, कैसे बनना बताऊंगा आपको। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। आप देखिए ओव्यूल देखिए, आप ओव्यूल को दिखाऊं क्योंकि उसकी जरूरत बाद में आएगी हमें। You see here the 5 types of ovule present in eukaryotic plant. 5 types of ovule, मैंने बताया आपको there are 5 types of ovule, 5 types of ovule in eukaryotic plant. Orthotrophus, Anatrophus, Hemitrophus, Orthotrophus, Anatrophus, Hemitrophus, Sursinotrophus, Compilotrophus, और Sursinotrophus, Orthotrophus, Anatrophus, Hemitrophus, Sursinotrophus, Compilotrophus, Amphitrophus, they call it Amphitrophus. 6 Amphitrophus. This is the types of ovule. लेकिन मेरी कॉमन रूल यही है, मैक्सिमम प्लांट कंटेन्स एनाट्रोपस ओव्यूल। तो हम देखेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल कैसा होता है। We see here एनाट्रोपस ओव्यूल that are present in flowering plant. So first of all, we see here एनाट्रोपस ओव्यूल in flowering plant, that is एनाट्रोपस ओव्यूल। इसकी एक फिगर देखिए आप, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एनाट्रोपस ओव्यूल। देखिए इसके अंदर होता है एम्ब्रियोसाइट, देखिए एम्ब्रियोसाइट है, देखिए ये आप देखिए इसके अंदर देखिए 2 एंटीपोडल सेल हैं, ये 3 एंटीपोडल सेल है, 2 न्यूक्लियस यहाँ जुड़े हुए, एक सेल बनाते हैं 2 न्यूक्लियस हैं यहाँ। यह देखिए यह इंटीग्यूमेंट से घिरा होता है, ठीक है ना। तो आपको आपको बना दे रहा हूँ समझने के लिए। देखिए बीज आ देना तो आपको ये सेल है, बीज सेल। देखिए आप इसमें क्या है, चेलाजा, इसको देखेंगे आउटर इंटीग्यूमेंट, ये है इनर इंटीग्यूमेंट। इसको देखेंगे आप, ये है माइक्रोपाई, इसको देखिए फ्यूनिकिल, आप इसको देखेंगे, ये है एग सेल, इसको कहेंगे दोनों को एक साथ सिनर्जी। इसके कारण इसको आप कहेंगे एंटीपोडल सेल, यह है सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई, भी लिखा मिलेगा पोलर न्यूक्लियाई। These are the एनाट्रोपस ओव्यूल, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल that are present within the ovary. And these एनाट्रोपस ओव्यूल is very common in angiospermic plant. Maximum plant contains such type of ovule, एनाट्रोपस ओव्यूल।
These are that is called embryocyte. Here to here repeat structure the embryocyte. Embryocyte are 7 cell, 8 nucleated, 3, 4. This is one cell. 3 cell, 4 cell, 5, 6, 7 cell. 8 nucleated. 3 to 5, 6, 7, 8. 7 cell, 8 nucleated. This is microcyte. Such type of ovule are present within the ovary, attached with the female through placenta. So these are the types of the ovule. The anatomy ovule, very common ovule that are present in angiospermic plant. This is called the megasporangium. Ovule is called anatomy ovule, megasporangium. Megasporangium. एक कार्पेल को क्या कहोगे आप? टोटल एक कार्पेल जो है दैट आर स्टिग्मा स्टाइल इन ओवरी, मेगास्पोरोफिल, एक का कहेंगे मेगास्पोरोफिल, इसको कहेंगे मेगास्पोरेंजियम। इसको एम्ब्रियोसाइट, क्या है इसका? एम्ब्रियोसाइट को कहते हैं, क्या कहते हैं? दैट इज द मेगा, दैट इज इसको, दैट इज देयर नेम इज, दैट इज द मेल फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। Are you clear? These are the structures of the ovules and anatomy of ovules, and these are every part of the flower. I suppose you that every part that we study here in the second thing is the how these are made within the ovary, that is called megasporogenesis. How the pollen grain is present within the anther, made within the anther by process that is called माइक्रोस्पोरोजेंसिस। तो आप वी स्टडी दैट इज टू थिंग्स, माइक्रोस्पोरोजेंसिस एंड मेगास्पोरोजेंसिस। तो हम लोग अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि दो प्रोसेस आपको पढ़ाएंगे, आपको हाउ दे आर मेड, माइक्रोस्पोरोजेंसिस एंड मेगास्पोरोजेंसिस। यहाँ हम देखें कि और देखें कि ये जो फ्लावर हैं, ये फ्लावर कई तरह के कैसे फ्लावर होते हैं। कुछ फ्लावर कंप्लीट हैं, कुछ इनकम्प्लीट हैं, कुछ होते हैं स्टेमिनेट हैं, कुछ क्या पिस्टिलेट हैं। एक फ्लावर की क्वालिटी है। अब कंप्लीट इनकम्प्लीट उसके फ्लोर पार्ट पर डिपेंड करते हैं, कौन अगर मेल पार्ट है स्टिमुलेट है, फीमेल पार्ट है पिस्टिलेट है। और देखेंगे कैसे ऑरेंज है फ्लावर पर, फ्लावर पर किस प्रकार से फ्लोरल पार्ट ऑरेंज है। इस प्रकार से फ्लावर 3 तरह के हैं, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, एपिगाइनस एंड थर्ड है पेरीगाइनस, पेरीगाइनस। 3 तरह के फ्लावर है, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरीगाइनस। अगर देखिए सभी फ्लोरल पार्ट, सभी का मतलब कैरिस करोला एंड एंड्यूसियम ओवरी के नीचे से निकले हुए हैं, ओवरी ऊपर है, उसको कहेंगे हाइपोगाइनस, या तो दूसरा नाम सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, उसको सुपीरियर ओवरी कहते हैं। अगर सभी पार्ट फ्लोरल पार्ट जो है ओवरी के नीचे से निकले हुए हैं, ओवरी ऊपर है, कहाँ? थैलेमस पर, तो कहेंगे यह हाइपोगाइनस फ्लावर है। और एपिगाइनस जस्ट इसका उल्टा होता है कि सभी फ्लोरल पार्ट ऊपर से निकले होते हैं और ओवरी जो होती है नीचे होती है, इसको एपिगाइनस। पेरीगाइनस सेम प्लेस से निकले होते हैं। तो 3 तरह के फ्लावर आते हैं, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरीगाइनस। ये फ्लावर के टाइप्स और फ्लावर के फ्लोरल पार्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि माइक्रोस्पोरोजेंसिस, मेगास्पोरोजेंसिस, 2 क्लासेस हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेंसिस एंड मेगास्पोरोजेंसिस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, एवरीवन आई रिक्वेस्टेड टू यू, तो आप इसको लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर करते रहें। कोई भी दिक्कत आती, प्रॉब्लम आती, यू कैन आस्क क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू योर related to your topic that we can solve it। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें कि कैसी वीडियो आप चाहते हैं, कैसी आपको पसंद है, तो हम वैसे आपको देते रहेंगे अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू डिजायर। आर यू क्लियर? सो दैट इज द थैंक यू, हैव ए नाइस डे।